Hello students. So in this class you all can see the chapter name electromagnetic spectrum, right? So इस चैप्टर से कुछ MCQ करेंगे इस क्लास में, ठीक है, जो MCQ तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सो देखते हैं कुछ MCQ। और ये चैप्टर इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने वीडियो लेक्चर में दिखाया बुक से अच्छे से मार्क करके पढ़ो, ठीक है, बुक में हाईलाइट कर लो और अच्छे से रीडिंग करो, ठीक है, अच्छे से स्टडी करो बुक को। सो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया, ठीक है। बताओ, व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज ऑफ वाइट लाइट? यू ऑल नो व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज ऑफ वाइट लाइट? What is the wavelength range of white light? Option A 4000 nanometer to 8000 nanometer. Option B 400 nanometer to 800 nanometer. Option C 40 nanometer to 80 nanometer. And option D 4 nanometer to 8 nanometer. And तुम्हारा टाइम बचा है 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड और हो गया ख़त्म। तुम्हारा टाइम हो गया ख़त्म। तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 400 nanometer to 800 nanometer. Everything you will get in your book. That table, one table is there in page number 140. Page 140. Okay, ISC Selina book, page 140. Table is there. Okay, name of wave, then wavelength in nanometer. There you will get that visible light 400 to 800. Visible light. Okay, 400 nanometer to 800 nanometer. Okay, I told that you will read that table properly, that wavelength range. Try to keep in mind the visible one especially. Okay, and then the source. Okay, then method of detection. These few things you have to keep in mind. Okay, and if the options were in angstrom, okay, suppose options are in angstrom, okay, all in place of nanometer put angstrom. Here angstrom, okay, angstrom, here angstrom, angstrom, then tell which option will be correct. If all are angstrom, then which option will be correct? If all are angstrom, then it will be option A, 4000 angstrom to 8000 angstrom. Okay, that order, that range is in angstrom, and the range is in nanometer is 400 to 800. Okay, 400 to 800. फाइन, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड बाय, टेल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड बाय, ओके, ऑप्शन ए क्वार्ट्ज प्रिज्म, ऑप्शन बी रॉक सॉल्ट प्रिज्म, ऑप्शन सी ग्लास प्रिज्म एंड ऑप्शन डी एनी अदर मटेरियल। तुम्हारा टाइम बचा है 13 सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द करेक्ट, चूज द ऑप्शन, देन आई विल टेल फ्रॉम वेयर यू विल गेट इन योर बुक। ओके, आई विल टेल इट। शो टिक टॉक और हो गया तुम्हारा टाइम ख़त्म। तुम्हारा टाइम हो गया ख़त्म। आई होप तुम लोगों ने सही ऑप्शन चूज कर लिया। देख लेते हैं सही ऑप्शन। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्वार्ट्ज प्रिज्म। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्वार्ट्ज प्रिज्म। ओके, आई एम टेलिंग वेयर यू विल गेट दिस थिंग, दिस स्टेटमेंट, this information in your book. Go to page number 141. Okay, page 141. I told that you have to read ultraviolet radiation and infrared radiation properly. Okay, thoroughly you have to read everything, detection, source, properties, use, harmful effect. For these two days, ultraviolet, okay, ultraviolet I told in the video also, ultraviolet and infrared. Okay, ultraviolet and infrared. So in page number 141, if you go to the point 3 under ultraviolet radiation, go to point 3, go to point 3, read that line. The spectrum of ultraviolet radiation is obtained when they are passed through a quartz. Okay, so ultraviolet radiation can pass through quartz prism in place of a glass prism, because glass absorbs this radiation. Glass will absorb and quartz, through quartz ultraviolet radiation can pass. ठीक है, तो सपोज ये तुम्हारा क्वार्ट्ज प्रिज्म है, ठीक है, क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज प्रिज्म, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो क्या होगा, ये इधर से इधर जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है, इधर भी अल्ट्रावायलेट आ जाएगा, इधर भी अल्ट्रावायलेट आ जाएगा।
बट अगर प्रिज्म ग्लास से बना है, ग्लास से बना हुआ है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इंसिडेंटिंग UV, then on this side you will not get ultraviolet because ultraviolet radiation will be absorbed by this glass prism. Okay, keep in mind. Going to next question. ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लो तुम्हारा टाइमर भी स्टार्ट हो गया. ये ऑप्शन, ये आंसर जस्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, for the diagram shown in figure, the prism ABC is made up, ultraviolet radiation is there, okay, incidenting, but no ultraviolet to the right side. Option A glass, option B quartz, option C both A and B, option D any other material. और तुम्हारा टाइम बचा है 6 सेकेंड. 6, 5, 4, 3, 2 और हो गया तुम्हारा टाइम ख़त्म. तुम्हारा टाइम ख़त्म. देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लास. जस्ट फ्यू सेकेंड बैक आई टोल्ड, right? If this material, this prism is made up of glass, then ultraviolet radiation, UV radiation will be absorbed by glass. Okay, will be absorbed by glass, but it can pass through quartz. It can pass through quartz. Okay, through quartz it can pass, and through glass it will not pass. Glass will absorb ultraviolet radiation. ठीक है, ग्लास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया. शायद धीरे धीरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है किस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है इस चैप्टर से. क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन ए माइक्रोवेव, ऑप्शन बी एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, गामा रे. बताओ. 10 सेकेंड बचा है. 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7, 6, 5, 4. टिक टॉक हो गया ख़त्म. ओके, हो गया ख़त्म. तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. Now this most energetic means what? Most energetic means okay, most energetic means maximum frequency. Okay, whose frequency is more, energy of that wave is also more. Most energetic means maximum frequency. Now among these four options, microwave, X-ray, ultraviolet and gamma, if we want to arrange them in the increasing order of frequency, then first microwave will come, microwave, okay, then it will be UV, okay, then X-ray and then gamma ray. This is the order. Okay, this is the order. Microwave, UV, X-ray, gamma ray. In this direction frequency is increasing. Okay, frequency is increasing. In this direction frequency is increasing. So who is at more maximum frequency? gamma का frequency maximum है, इसीलिए gamma wave का और gamma ray का एनर्जी मैक्सिमम होगा. मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया. बताओ क्या होगा? द सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट. सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑप्शन बी रेड हॉट आयरन बल्ब, ऑप्शन सी कार्बन आर्क लैम्प एंड ऑप्शन डी सोडियम वेपर लैम्प. दिस वन ऑल्सो यू विल गेट इन दैट टेबल. फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन को चूज करो पहले, उसके बाद मैं बता दूंगा बुक में कौन सा पेज नंबर में कहाँ पे मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन. ये चैप्टर इन्फॉर्मेटिव है और टाइम ख़त्म हो रहा है. ख़त्म हो गया टाइम. देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. ये भी मिलेगा पेज नंबर 140 इन दैट टेबल. ओके, पेज 140 इन दैट टेबल. इफ यू लुक एट द टेबल, अल्ट्रावायलेट radiation sources are written: sunlight, arc lamp, spark. Okay, sunlight is the natural source. Then arc lamp and spark. Okay, and spark. ठीक है, तो आर्क लैम्प, यहाँ पे कार्बन आर्क लैम्प है, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन. ठीक है,
ये चैप्टर इन्फॉर्मेटिव है, तुमको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया। द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैस, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन ए गामा रे, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट एंड रेडियो वेव। बताओ, 15 सेकेंड बचा है और ये भी इंफॉर्मेशन में दे दूंगा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। और हो गया तुम्हारा टाइम खत्म, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। तो देख लेते हैं एक बार सही ऑप्शन को, इंफ्रारेड रेडिएशन। सही ऑप्शन है इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, राइट, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये मिलेगा पेज नंबर 143, पेज 143, just in the first column, point 7, one point is there, 7.7, which point is coming under infrared radiation. There it is written clearly, I am reading that statement. The greenhouse gases such as carbon dioxide present in the Earth's atmosphere absorb the low energy infrared radiations and keep the Earth's surface warm. Okay, everything written. Greenhouse gases such as carbon dioxide present in the Earth's atmosphere absorb the low energy infrared radiation. So greenhouse gases absorbed which radiation? Infrared radiation. ओके, ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया। ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन obtained and here prism required for obtaining infrared radiation. In question number 2, 3 we discussed for ultraviolet radiation. Here prism required for obtaining infrared radiation. First choose the answer, then I am telling where will you get the information. Okay, first choose the correct answer. तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है और टाइम खत्म हो गया, ठीक है। पहले देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। इस टाइम करेक्ट ऑप्शन होगा रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। सो दैट मीन्स इंफ्रारेड रेडिएशन, infrared radiation can pass through rock salt. Okay, can pass through rock salt. सो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा? इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर जितने सारे पॉइंट्स है, डिटेक्शन, सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, प्रॉपर्टीज, हार्मफुल इफेक्ट, यूज, एवरीथिंग यू हैव टू रीड। सो ये पॉइंट मिलेगा तुमको डिटेक्शन के अंदर पॉइंट 3, ओके, पेज 142, डिटेक्शन के अंदर पॉइंट 3, ओके, डिटेक्शन के अंदर पॉइंट 3। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट। The spectrum of infrared radiation is obtained by using a rock salt prism. Okay, the spectrum of infrared radiation can be obtained by using rock salt prism. Okay, whereas the glass prism absorbs them. Okay, this rock salt prism, through rock salt prism it can pass, but through glass prism, okay, through glass prism it cannot pass. Okay, glass prism will absorb. ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट के लिए क्या था? अल्ट्रावायलेट के लिए था क्वार्ट्ज प्रिज्म। ओके, थ्रू क्वार्ट्ज प्रिज्म अल्ट्रावायलेट कैन पास। एंड इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए क्या है? रॉक सॉल्ट प्रिज्म। ओके, और रॉक सॉल्ट मटेरियल, रॉक सॉल्ट प्रिज्म, थ्रू रॉक सॉल्ट प्रिज्म अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन पास। ओके, बट फॉर बोथ द केसेस थ्रू ग्लास प्रिज्म दे कैन नॉट पास। Okay, ultraviolet, infrared, both of them cannot pass through glass prism. Keep in mind. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये लो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, और बताओ सही ऑप्शन क्या होगा। टाइमर स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। नेम द रेडिएशन हुज wavelength is maximum. This one तो you all can choose. Right? Wavelength is maximum. Option A radio wave, option B microwave, option C ultraviolet and option D X-rays. बताओ कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जाए? कंप्यूटर जी, कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जाए? टिक टॉक हो गया
ख़त्म, टिकटॉक हो गया ख़त्म। देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडियो वेव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडियो वेव। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। ऑर्डर कैसे होते हैं, पहले आते हैं गामा रे, ओके, देन एक्स रे, देन यूवी रे, ओके, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, okay, then microwave, then radio wave. Okay, in this direction, wavelength increases. Okay, that means gamma ray has minimum wavelength, maximum frequency, and radio wave has maximum wavelength minimum frequency. ठीक है, रेडियो वेव हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया। पहले करेक्ट ऑप्शन चूज करो, उसके बाद मैं बता दूंगा बुक में कहाँ पे मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कॉजेज स्किन बर्न्स? ऑप्शन ए विजिबल रेडिएशन, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन डी गामा रेडिएशन। एंड तुम्हारा टाइम बचा है 10 सेकेंड। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जाए, कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जाए? तो हो गया टाइम ख़त्म। आई होप तुम लोगों ने करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया। तो देखते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को। करेक्ट ऑप्शन होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। करेक्ट ऑप्शन है इंफ्रारेड रेडिएशन। करेक्ट ऑप्शन है इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो बताते हैं कहाँ पे मिलेगा बुक में। बुक में पेज नंबर 143। ओके, go to harmful effect of infrared radiation. Under that point there is only one sentence, harmful effect of infrared radiation. Okay, harmful effect of infrared radiation. Go to under that point, just only one sentence is written there. I am reading this sentence. A high dose of infrared radiation may cause skin burn. Okay, infrared radiation cause skin burn. And another point also you will keep in mind, that is UV radiation causes skin cancer. Okay, ultraviolet skin infrared skin burn and ultraviolet skin cancer. ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज्ड एज सिग्नल ड्यूरिंग द वॉर? ओके, फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, देन आई विल अगेन टेल कहाँ पे मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन। ओके, आई विल टेल दैट वन। सो ऑप्शन ए रेडियो वेव, ऑप्शन बी माइक्रो, ऑप्शन सी इंफ्रा एंड ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट। तुम्हारा टाइम बचा है 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और हो गया तुम्हारा टाइम ख़त्म। ठीक है, टाइम हो गया ख़त्म। देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अगेन इंफ्रारेड रेडिएशन। करेक्ट ऑप्शन है इंफ्रारेड रेडिएशन। हियर रेडिएशन यूज्ड एज सिग्नल ड्यूरिंग द वॉर। Radiation used as signal during the war. This one you will get again page number 143. Okay, this time you go uses of infrared radiations. Uses of infrared radiations. Okay, uses of infrared radiations. ठीक है, यहाँ पे जाओ पॉइंट नंबर डी। Point number D, they are used as signals during the war. There are 2 reasons. First one, this ray is not visible. Okay, this ray will not be visible to enemy. And second point, this ray will not be absorbed much in the medium. Okay, there are 2 points for which we use infrared radiation as signal during the war. First one, invisible. Okay, invisible, इसीलिए यूज़ करते हैं इंफ्रारेड को। एंड सेकेंड वन, नॉट एब्जॉर्ब्ड मच बाय द
not absorbed much by the medium। ठीक है, इसीलिए हम लोग इंफ्रा रेडिएशन का यूज़ करते हैं सिग्नल एज सिग्नल ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, तो ये है आज का कुछ 10 MCQ। ओके, 10 MCQ हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। कौन से चैप्टर से, टॉपिक से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वन इज gamma ray, then X-ray, then UV ray, then visible, okay, under visible there are 7 colors, okay, VGR, then come to infrared, then microwave, then radio wave। Always try to keep in mind these 7 names of electromagnetic spectrum in a proper order। Either you keep in mind in the increasing order of wavelength, or you keep in mind in the decreasing order of wavelength, any one order you follow, okay, other things you can find, okay। सो ये तुम्हारा 10 MCQ हम लोगों ने आज प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट डे और भी कुछ MCQ करेंगे। तो आज तक इतना ही है। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।